Hello. Yeah. Now, how to use Excel's VLOOKUP functions. Many of our learners have told us they want to learn how to use Excel's VLOOKUP function. VLOOKUP is an extremely useful tool and learning how to use it easier than you think. It is easier than you think. Okay. But before you start, you should understand the basics of functions. Check out the functions lessons, which is we cover in the before in today's sessions. We cover yesterday also the functions key, Excel formulas, specific versions, VLOOKUP, and now what exactly is VLOOKUP for? Basically, VLOOKUP lets you search for a specific information in your spreadsheet. For example, if you have a list of products or list of employees with their SAP ID or employee ID, you could search for the you could search for the employee ID according to their names with the specific name or ID which is generated by the company. We are going to use VLOOKUP to find the employee ID to photo frame the frame of the structure in the table box of the sheet. You can probably already that because this is the simple example. Once you learn how to use VLOOKUP, you will be able to use it with larger and more complex spreadsheets, and that's when it will become truly useful for you. In become, or you are a job holder, or you are a student now, it is very important to know the VLOOKUP functions. It is basically used in workplace organizations to VLOOKUP functions to specific identifying the items or employee ID or anything you want to filter the data as you desired. You want to check the formula for that. You will add our formula to cell. Anything you want to VLOOKUP. So now we will add our formula to cell. This is the cell C. I'm going to increase the sheet. Okay. See, I'm writing serial number, employee name, and employee ID with according to their name. Sheikh Aisa has 105625 employee ID. Apeksha Jain similarly 111542. Okay. Now we want to find that employee ID according to their name. Suppose you have thousands of data and you have to find only 10 employees ID according to their name. So how you want to know that the employee ID? Just you select one by one or you have to go with the functions. अगर आपको एक करके अगर जानना हो 100 लोगों का डेटा 1000 में से, आप कैसे इतना करेंगे इतने कम समय में? आपके पास टाइम भी नहीं है, तो उसके लिए फंक्शंस यूज करते हैं which is VLOOKUP functions. Now I'm going to delete this first. ये सारा मैं डिलीट करता हूँ. पहले एम्प्लॉय आईडी रहने देता हूँ. You want to drag it box, just select this and drag it where you want to put this box table. Okay. See, यहाँ पे मैंने 5 कॉलम लिए हैं. Okay. Now adding this, we will add our arguments. Then arguments will tell VLOOKUP to search for and where to search for.
what you want to search or where to search from that particular data. So the first argument is the name of the item you are searching for, which is in this case in employee ID. I want to find the employee ID in this case according to their name. And the second, the serial number, name and the employee ID. Okay. Now going to the employee ID. एम्प्लॉय नेम में कुछ नहीं लिखा है अभी, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, बट एम्प्लॉय आईडी में मैं पुट कर रहा हूं. लेट्स सी व्हाट हैपन. जस्ट क्लिक, प्रेस इक्वल टू साइन, वी लुक अप, टैब बटन फॉर मैनुअली, कंट्रोल ए फॉर द डायलॉग बॉक्स. सी फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स, लुकअप वैल्यू which is nothing but your employee name. आपको लुक कहां से करना है वो आईडी को, तो लुकअप वैल्यू ये एम्प्लॉय नेम है. यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा इसको, सिलेक्ट द सेल विच इज F2, freeze this cell with the dollar sign which is F4 on your keyboard, freeze this cell, go to table array which is where you find the data. आपको डेटा कहां से फाइंड करना है, तो हमारा शीट अभी यही है. अगर सिमिलरली आपका शीट कहीं और होता, सपोज वी हैव 6 शीट्स इन द एक्सेल, आपको रिजल्ट में अगर सपोज our data is in result sheets, so you have to go that sheet and select all the data. बट यहाँ पे मुझे यहीं पे ये डेटा है जो मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे इस चीज को, पूरा ड्रैग कर ले जहां तक आपको सिलेक्ट करना है. सपोज हम यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ आ गया ये. इसको भी फ्रीज करना है F4 फंक्शन से, विच इज डॉलर साइन, फ्रीज दिस कॉलम, एंड दिस इज द कॉलम इंडेक्स. कॉलम इंडेक्स 2 इसलिए क्योंकि ये दूसरा कॉलम है, हमारा फर्स्ट नेम था ये दूसरा कॉलम है. और अगर इस सेंस में भी देखा जाए तो सीरियल नंबर को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉलम जो है विच इज 2, 1 एम्प्लॉय नेम एंड द एम्प्लॉय आईडी विच इज 2 कॉलम इंडेक्स नंबर. सो टाइप 2, range lookup value, we put 0 here, false, click OK. See NA, क्यों आया NA? क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा तो है ही नहीं, तो यहाँ पे दिखाएगा क्या? यहाँ तो हम लोगों ने फॉर्मूला जो डाला है वो VLOOKUP के लिए एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है अकॉर्डिंग टू देयर नेम, है ना. तो यहाँ NA इसलिए आया क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय नेम नहीं लिखा है. जैसे मैं लिखता हूं यहाँ नेम शेख आयशा, यहाँ पे नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें यहाँ पे जो डेटा था ऑलरेडी मेंशन नहीं किया था. सिमिलरली किसी किसी केस में आता है बट यहाँ नहीं है. तो आपको क्या करना है, पहले ये एम्प्लॉय नेम को कॉपी कर ले, टर्न ऑफ योर वीडियो, ओके, सिलेक्ट द डेटा फर्स्ट, सी जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉपी करके वहां पेस्ट किया, मैनुअली मैंने टाइप किया था तो नहीं लिया, बट हमारा डेटा कहां से मर्ज किया गया है, एम्प्लॉय नेम से. तो जैसे ही मैंने पुट किया वहां से कॉपी करके यहाँ पे ऑलरेडी इट मेंशन द एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी. आपको ये प्रैक्टिस करना होगा समझने के लिए. यहाँ पे आप समझ जाएंगे, हो सकता है आप भूल जाए बाद में,
क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बारीकियां देखनी चाहिए। अब जहां भी अगर मिस करते हैं तो आपका डेटा मिसमैच हो जाएगा, नहीं आएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द basics and the concept of the putting formula for that VLOOKUP. Okay, I'm going to select this and color this. Okay, and fill this. I'm going to delete this. यहाँ पे मैंने ले लिया, एक नाम और लेते हैं हम, विशाल सिंह। कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर दे, ठीक है। Select. Going to define you again. Just click on the employee ID equal to sign VLOOKUP. Control A for the dialog box. आपको कहाँ से देखना है? एम्प्लॉय आईडी से देखना है, पूरा सिलेक्ट करना है पूरा सेल को गाइस, ठीक है। फ्रीज दिस सेल, टेबल एरे विच इज एम्प्लॉय नेम, पूरा सिलेक्ट कर ले, आएगा उतना ही जितना हम चाहते हैं, ठीक है। कॉलम इंडेक्स 2 0, ओके। सी अकॉर्डिंग टू देयर नेम द employee ID has been created according to their name. Let's see अपेक्षा जैन। अपेक्षा जैन का एम्प्लॉय आईडी कितना है देखते हैं यहाँ पे, विच इज 111542। देखें यहाँ पे सही है कि नहीं। हाँ, अपेक्षा जैन विच इज 111542, ओके। विशाल सिंह 111541। विशाल सिंह, वेयर विशाल सिंह, हाँ 111541, which is 111541। यहां से डेटा आपको इतना बता दिया। We have 20 datas in our sheets. We have to find 5 people or 6 people from that data employee ID, ठीक है। तो कैसे हम लोगों ने फाइंड किया? VLOOKUP function के थ्रू। Again I am going to explain you. If you have any doubts, you just write your questions in the chat box after ending the session, guys. Okay. और एक important message है जो मैं देना चाहता हूँ। पिछला जो मैंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो MS ऑफिस वर्ड किया था, उसमें क्या है, कई लोगों ने वो एज फ्री था और कुछ पेड था, तो कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये एक्सेल्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसमें कुछ पेड थे और पेड को सर्कुलेट किया गया, क्योंकि ये काफी टफ टॉपिक है गाइस। सो इसमें कवर करना होता है, कई लोग हैं, तो इसलिए वी चार्ज फॉर दैट 100 रुपीज। बट क्या है, उसमें भी लिखा था मैसेज में, आप अगर आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेल अस। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि लोगों ने कई मैसेज किए, ड्यू टू एनी रीजन, सब जानते हैं कोरोना के वजह से प्रॉब्लम है, तो कई लोगों ने मैसेज किया तो उन लोगों को प्रोवाइड किया गया फ्री। तो क्या है, इसमें कई लोग ये भी ऐसा होते हैं कि पढ़ते हैं जरूर बट मैसेज नहीं करना चाहते ड्यू टू एनी रीजन, और कई लोग हैं ऐसे जो पेड करके यहाँ पे वर्कशॉप पे आए। वी हैव registrations around 100 registration, but the participants you have to, so you see their participants are in under 20 to 25। तो क्या है, यहाँ पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं फ्री देने के बाद, लेकिन एक्टिव नहीं होते। तो इसमें लॉस किसका है गाइस, आप ही बताओ। हम लोग तो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए है नॉलेज, हाँ। और अगर आपको वर्दी लगता है तो यू कैन पे एनी अमाउंट यू वांट इन द फीडबैक फॉर्म। दिस इज नॉट मैंडेटरी।
After the session, we circulated the feedback form. This is mandatory to obtain the certificates. So आपको फीडबैक फॉर्म भरना है. फिर से मैं बोल रहा हूँ, फीडबैक फॉर्म भरें, क्योंकि पिछला सेशन और सेशंस जो हुए, क्या है, लोग फीडबैक फॉर्म भरते नहीं और मैसेज करते हैं, सर आवर सर्टिफिकेट्स हैज नॉट बीन डिस्प्लेड इन द लिंक. सो आपको फीडबैक फॉर्म भरना है सर्टिफिकेट्स के लिए. देखिए, सर्टिफिकेट्स आप फीडबैक फॉर्म भरेंगे तभी सर्टिफिकेट इशू होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफी है, लोग अटेंड नहीं करते हैं. तो बिना अटेंड किए वी कांट क्रिएट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट पार्टिसिपेंट्स. सो आप अटेंड किए, ये अच्छी बात है. और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जितने भी हो वो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि डिलीवर करना है टाइम टू टाइम चीजों को. कुछ लोग आए हैं जो उम्मीद से आए हैं, जो जानते हैं, जो जान रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं. नेक्स्ट सेशन विल बी इन पीपीटी फॉर्मेट विच इज इन टोटली फ्री. इफ यू वांट टू पे एनीथिंग यू कैन पे, बट इट इज फ्री. क्योंकि फ्री रहने पर ही लोग आते हैं, और कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते. वो डिपेंड करता है लोगों पर कि करना चाहते हैं कि नहीं. लॉकडाउन है जिसकी वजह से वी आर ऑफरिंग द ऑनलाइन कोर्स. तो नेक्स्ट सेशन अपना वो पीपीटी रहेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन संडे में बी, बट एक दिन का सेशन है वो. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, दिस इज द स्मॉल मैसेज विच आर शेयरिंग विथ यू, वी आर शेयरिंग विथ यू गाइज. और कई लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी यहाँ एक्टिव नहीं है, ऐसे भी है. रजिस्ट्रेशन नंबर्स कई ज्यादा है, पार्टिसिपेंट्स नहीं है, और पार्टिसिपेंट्स अगर है भी तो एक्टिव नहीं है. और फिर क्या है, वो बाद में सर्टिफिकेट्स के लिए डिमांड करेंगे. आपने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, फिर सर्टिफिकेट्स इशू करने का क्या मतलब है. देखिए, see, certificate or degree is just a piece of paper. आपके साथ सिर्फ नॉलेज काम आएगा वर्क प्लेस में. अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, आपके पास एक्सपोजर है, तो यू कैन गो अहेड. आपको मैनेजर अप्रिशिएट करेगा, टीम मेंबर्स, सारे लोग. डिग्री से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, उसके बाद आपका डिग्री कोई मैटर नहीं करता. नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर डिग्री. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द VLOOKUP फॉर्म. अगेन आई एम गोइंग टू शो VLOOKUP. VLOOKUP आप पूरा टाइप कर सकते हैं, या VLOOKUP VL भी टाइप करें तो देखते हैं आप यहाँ पे, इट्स ऑलरेडी showing your VLOOKUP functions. Just tab button, just press the tab button on your keyboard, press tab, VLOOKUP already written. ठीक है, ब्रैकेट के साथ वो आ गया. अब आपको डायलॉग बॉक्स चाहिए तो क्या करना है, कंट्रोल A करना है. कंट्रोल A फॉर द डायलॉग बॉक्स. ठीक है. अगर डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए, यू आर एक्सपर्ट ऑन दैट, जस्ट टाइप. डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए आपको, सिर्फ फंक्शंस की आप जान रहे, ज्यादा एक्सपर्ट है, तो आप जस्ट सिंपल क्लिक ऑन दैट सेल. ठीक है. फ्रीज दिस सेल, कॉमा, वेयर यू वांट टू फाइंड दिस, जस्ट सिलेक्ट दिस होल. मैंने होल सेलेक्ट कर दिया. फ्रीज दिस सेल अगेन, कॉमा 2 विच इज कॉलम इंडेक्स C. C इज द 2 कॉलम. अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 है सीरियल नंबर से, A B C which is 3, but we are selecting only 2 cells. So according to their cells, B is first and C is 2 column. Okay, column index number. So 2 column, comma 0 which is false, bracket close, hit enter. See, without dialog box,
इट विल अपीयर। जैसे ही डबल क्लिक किया ये सारा एज इट इज उसके नाम के साथ आ गया है, एम्प्लॉय आईडी। Similarly, you have to find any roll number for that. Just now I'm going to select this. See, name, roll number. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रोल नंबर दे देनी है। ठीक है, 20 से 20 to 26 रोल नंबर यहाँ पे मैंने पुट किए हैं। ठीक है, सेंटर करने के लिए आपको बताया गया था, यहाँ पे सेंटर कर दे, क्लिक करके यहाँ से सेंटर है। ठीक है, रोल नंबर भी सेंटर कर दे। फॉर्मेट करना पूरा, कलर कर सकते हैं आप दूसरे कलर से भी। बॉक्स, रोल नंबर में बॉक्स नहीं आया है, बॉक्स डालने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स, गो टू बॉक्स, ऑल बॉर्डर्स, सी। ठीक है, नाउ ये हमारा सीट है और मुझे जानना है कुछ पर्टिकुलर नेम के रोल नंबर। ठीक है, आई वांट टू दिस KM Mahi 24 with the helping of formula VLOOKUP formula functions. I want to know the, just copy this cell again. ये कॉपी इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि ये डेटा से मुझे जानना है। किसी और सीट में वो डेटा रहता तो वहां से कॉपी करने की जरूरत है, वहां से सिलेक्ट कर सकते थे। नाउ गोइंग टू डिलीट दिस रोल नंबर। ठीक है, अभी क्या है आपके पास, सिर्फ रोल नंबर, सिर्फ नाम है। चलिए मैं 2-3 नेम को मिटा देता हूँ। हाँ, डिलीट करने के लिए की आपको बताया नहीं होगा शायद। डिलीट करना है अगर आपको, you have to select any particular cells or column. You just select the cell, go to right click, you see the options delete here. Okay, just delete this cell. Shift cells, or you have to select cells up. So we deleted the shift cell, lift up. See, जैसे मैंने डिलीट किया ये हट गया सारा, फॉर्मेट भी नंबर कलर्स के सारे साथ। कैसे हुआ ये, Ctrl+Z सिलेक्ट करना है उसको फर्स्ट, गो टू सिलेक्ट बाय राइट क्लिक ऑन योर माउस, डिलीट ऑप्शंस, और you want to insert any column or row, you just click on that row you want to insert, just insert it. See, D के बाद ये आ गया, अभी क्या था, D के बाद F कॉलम था। ठीक है, तो मुझे ये दो लोगों के नाम डिलीट करने हैं। यहाँ से मैं जब सिलेक्ट करके सिर्फ डिलीट की बटन दबाता हूँ और एक कीबोर्ड, सो ये सिर्फ नाम को डिलीट करता है बट फॉर्मेट डिलीट नहीं करता। आपको सेल डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके, सी, नाउ आई वांट टू नो द रोल नंबर ऑफ दैट। VLOOKUP फंक्शंस, Ctrl+A, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, मुझे कहां से जानना है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेम विच इज आवर लुकअप वैल्यू, फ्रीज दिस सेल बाय पुटिंग द डॉलर साइंस, लुक टेबल एरो। टेबल एरो क्या है हमारा, टेबल एरो दिस, कहां से डेटा आपको चेक करना है, फ्रीज दिस सेल, column index which is 2, 0, false, C, डबल क्लिक करें, आ गया। अब देखते हैं KM Mahi has 24 number or not। KM Mahi 24 रोल नंबर, KM Mahi का 24 रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मिसमैच नहीं किया डेटा। मिथिलेश कुमार का चेक करते, सिमिलरली 21, दिस इज 21 ऑल्सो। प्रवीण प्रवली पिल्ली, सॉरी 20,
Bubbly Basundia 23 roll number, Bubbly Basundia 23 roll numbers. ओके गाइज, तो ये VLOOKUP का फंक्शन है। और एक फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ पिवट टेबल का, विच इज गोइंग टू बी कंट्री। मैं लिखता हूँ इसके बाद कंट्री, ठीक है, इंडिया लिख देता हूँ एक में। Select this, just strike, just strike this. New sheet. I'm going to create a new sheet. After the VLOOKUP, select this. ये देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, तो क्या है, कॉलम अपने हिसाब से नहीं आया। ये ऑटोमेटिक वो बाय डिफॉल्ट जितना साइज बना रहता है MS Excel का उसी फॉर्मेट में आया। बट यू वांट टू सिलेक्ट और इंक्रीज दिस वन बाय वन, you can select by dragging it, or you can select all the data and click this options which is arrow, और किसी एक सेल में आप डबल क्लिक करेंगे ये, तो ये C का जो कॉलम है वो भी हो जाएगा ठीक। या फिर इस कॉलम में क्लिक करते हैं तो वो भी B का कॉलम जो है वो भी। और सिमिलरली अगर आपके पास कई सारे डेटा होते, कॉलम्स होते और वो अपने हिसाब से डेटा को साइज कर लेता, तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना था ये विच इज ट्राइंगल बॉक्स। सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करें आप ऊपर वाले कॉलम में, तो वो डेटा को अपने अकॉर्डिंग जितना उसको स्पेस लेना है एक सेल में वो ले लेगा, ठीक है। इंडिया, इंडिया, USA, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। सिमिलरली मुझे ये पेस्ट करना है। I'm going to show you pivot table. That's why I'm creating this new column which is country, ठीक है। I'm going to box it whole data, ये हो गया, ठीक है। pivot table का फंक्शन क्या है? Very useful tool for filtering the data again by column and index. Just select the data, go to insert, home ribbon, insert. There is options for pivot table. Easily arrange and summarize complex data in a pivot table. You can just click double a value to see which detailed values are make up the summarized data. Go to click on that pivot table. यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये पूछता है आपको एक सीट में क्रिएट करना, और यू हैव टू क्रिएट अ न्यू शीट फॉर दैट। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम गाइज बिकॉज आवर एप्लीकेशन डजंट अलाउ me to speak or take more sessions, more lengthy sessions, so I'm going to cover this fast. New worksheet, just okay. शीट 1 अभी आपका बना है, जो मैंने अभी कंट्री को ऐड किया शीट 1 पे। अभी आप देखिए यहाँ पे शीट 1 क्रिएट हुआ, शीट 1, शीट 2 क्रिएट हुआ है। यहाँ पे पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स है। मुझे क्या जानना है, एम्प्लॉय नेम, just drag it down into the rows box, okay, and there's employee ID. You want to know the country
name the values functions. This is the functions of the values which is functions one और वन विच इज कंट्री, एक कंट्री का एक इंसान वो दिखा रहा है, क्योंकि एक वो फिल्टर, सपोज we are non-residential Indian NRI, we have citizenship in for India as well as a Canadian. तो इस केस में क्या होता, we have dual citizenship. अगर हमारे पास ऐसा होता तो वो दिखाता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर डेटा. अब क्या है, एम्प्लॉय नेम के साथ मुझे एम्प्लॉय आईडी जानना है. वैल्यूज में डालेंगे, ये देख सकते हैं वैल्यूज में भी वही काउंट कर रहा है. आप चेक कर सकते कॉलम्स में. यू हैव टू डिलीट दिस, गो टू रोज. ये देखिए जैसे मैंने रोज में डाला, कंट्री डाल के मैं दिखाता हूँ. Just delete, remove field country code in rows. See, now I'm going to delete the pivot table. Increase this is fair, zoom in. आप देख सकते हैं pivot table का रिजल्ट. अपेक्षा जैन भूटान से है, बबली सिंधिया इंडिया, दानिश जबार यूएसए, डॉक्टर रिस्पाल गिरी नेपाल. चलिए मैं देखता हूँ अपेक्षा जैन भूटान से है कि नहीं हमारे सीट में. देखिए अपेक्षा जैन यहाँ पे मैंने पिवट लिया था ना इस टेबल से, तो जैन इज बिलोंग टू भूटान, दानिश इज बिलोंग टू यूएसए. नॉट चेक द सीट ऑफ पिवट टेबल. दानिश इज बिलोंग टू अंडर दानिश, यू हैव टू दीज ऑप्शंस यूएसए. ठीक है, this is the formula for pivot table, which is very useful, very useful for data to recognize or summarize the data into the sheets. Now pivot table content में नहीं था, but मैंने अभी बताया. Now this is the end of this session, guys. If you have any questions, please write down your questions. I will answer you one by one. Okay, and after this session you got your feedback form. You get your feedback form, so just fill that feedback form to obtain your certificates. Within 1 week you get the links of the certificates. Just download it from our WhatsApp group and don't leave the group until you get the certificates. डेटा जब तक आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट ना करें, ये रिक्वेस्ट है. क्योंकि कई लोग निकलने के बाद पर्सनली मैसेज और मेल करते हैं, अननेसेसरी वो मेल और मैसेज होता है ना. तो आप ग्रुप से बने रहें और सर्टिफिकेट्स लिंक कुछ दिनों में प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप पहले चेक करें. कई लोग क्या है, चेक करने के बाद नहीं मिलता उन लोगों को, बट वो सर्टिफिकेट्स उनका ऑलरेडी इशूड है वहां पे, वो नहीं देख पाए, किसी भी कारण से उनको दिखता नहीं है या मिल नहीं पाता है. तो ऐसा नहीं है, आप फीडबैक फॉर्म भरे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. ठीक है, फीडबैक फॉर्म भरना कंपलसरी है. बट और there's options for donations in this feedback form. If you want to worthy of this workshop or you have satisfied with the workshop, you just donate some amounts. This is not mandatory. आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं है अगेन, बट फीडबैक फॉर्म भरे. और चलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूं. Freeze cell. First question is freeze cell. How to freeze the cell? Going to the VLOOKUP function.
freeze the cell ना. Just delete this cell first. VLOOKUP, Control A, VLOOKUP value. Freeze the cell, which is $, which is F4 command in your keyboard. Freeze the cell, sir. आपको $, put करना है by pressing F4 function 4 key in your keyboard. बस आपको सिलेक्ट कुछ नहीं करना है, वहां पे कर्सर सिर्फ रख दे और F4 की प्रेस करे, वो ऑटोमेटिक फ्रीज कर देगा बाय $. टेबल एरे, which is table array. Just again you have to press F4 function for press. See, table array is freeze. Column index 2. F4 function for freeze. Okay, F4 function for freeze. If you're using a laptop, there is the function of Fn function above in the control box, control key. Just click function key plus F4 बटन. कई लोगों के लैपटॉप में फंक्शंस की होते हैं, उसको क्लिक करके F4 दबाना. अगर सिर्फ F4 ही आप प्रेस करते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा. समझ रहे हैं? फंक्शन की के साथ अगर आपके फंक्शन लैपटॉप में है तो फंक्शन की F4 0 C F4 for function. Okay, now I'm going. Applications doesn't allow to plus 1 hour, इसलिए प्रॉब्लम करता है गाइस. Select this cell. View options for freeze. There is the freeze panes. Anamika Chakraborty, freeze cell. Just select the cell you want to freeze. Go to the view ribbon box, which is home, insert, layout, view. Click on the view options. Okay, view. There's the options for, just select the cell first. There's the option for freeze the panes. Freeze a portion of the sheets, keep it visible while you scroll through the rest of the sheet. Okay, just freeze the cell. You want to freeze the first column, you want to freeze the top row, or you want to freeze the panes. Okay, just click the first column if you want to freeze the first column. Okay, just freeze this cell. Our column has freezed. Okay, this is the freeze key functions. Select the below and rows for freeze panes. Just select the box, unfreeze the panes or freeze top row. देख सकते हैं फंक्शंस कैसे करता है, वो जानना जरूरी है. VLOOKUP फंक्शन में आते हूं मैं. Unfreeze the cell. Just select the cell first to unfreeze. Go to unfreeze. Unfreeze the cell. See, freeze functions. Just select the go to freeze panes top row. See, while you scrolling down, see, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं ये फ्रीज हो गया है, फर्स्ट रो फ्रीज कर गया, बट
सारे डेटा जो नीचे है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्क्रॉल हो रहे, बट क्या है, हेडर जो है आपका फ्रीज हो गया है। ठीक है, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। एच लुकअप, ओके, feedback form is going to share after the session. Mention not Anamika. Don't ask for feedback form. If you are in group, you get your feedback form. Just fill that feedback form to obtain your certificates. HLOOKUP function जो, suppose we are going to edit this HLOOKUP function. HLOOKUP, this is nothing but the similar, or you can say the value of functions. See, value, freeze this cell, HLOOKUP, HLOOKUP is an Excel function to look up the retrieved data from a specific row in table. The H in lookup stands for horizontal view, where the lookup values appear in the first row of the table, moving horizontally to the right. HLOOKUP supports approximate and exact matching, and the wildcards apostrophe, question mark, or multiply asterisk marks for finding the partial matches. The purpose of HF value, look up the value in the table by matching on the first row, which is the first row. Go to the column index 0. See, horizontally way it find, but vertically it can't be find in the HF value. To value index the value to look up this is the value of your data, and the table is the retrieved data. Okay, and this is the range format. This is the range format for that. HLOOKUP. This is the range index. It is nothing but the default setting, and an exact match will case the HLOOKUP value function to the match nearest value in the table that I still less than the value which is creating the employee ID with the name, but we don't have the vertically or horizontally the functions for HF value, so we can't select the value first for H lookup value for these functions. Hope you understand. We don't have the H lookup value. Sir, I'm using Linux and there I'm using LibreCalc for the type of work. So I switch to Excel. Yes, Linux is very lengthy process, or you can say the certified is the OS system, which is you can use the MS Excel.
OS is nothing but the operating system. We generally use Microsoft Windows is the operating system we are generally use, sir. So you convert into the Microsoft Windows. क्या है, विंडोज में आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो आपको इजिली एक्सेस करने में आसानी होती है. लाइनक्स मैंने यूज किया है, उबंटू यूज किया है, लेकिन विंडोज जो प्रॉपर वे में आपको देता है ना, सारे तैयार करके. और क्या यू कैन से द एप्पल फोन एंड द एंड्रॉयड फोन, एंड्रॉयड हैज लॉट्स ऑफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एप्पल फोन, मैकबुक. तो देयर, बट एप्पल का कंपेयर नहीं कर सकते. लेकिन लाइनक्स और उबंटू जनरली यूज्ड इन द बैंक or the software companies, or you are a commercial, or you are a home basic, you can use the operating system Windows. Okay, sir. You can switch into the Excel using Windows operating system OS. Now, any questions, guys? I hear that some files will be put into Excel and then the print is taken. While why she we put okay, why she put to Excel before printing, sir? Why we put to Excel before printing, sir? I think you want to know the print options for the file. Okay, thank you. Okay, print options. See, I am going to print this sheet, name filter, which is taken, selected name filter sheet. Go to file options. Here is, you can see, mute all participants. Yes, you can see print options here. ठीक है, ये प्रिंट का पेज है, व्यू. आपको प्रिंट करना है इसको. यू कैन सिलेक्ट योर प्रिंटर. यहां से सिलेक्ट कर ले जो भी आपका प्रिंटर नेम है. ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ एक पेज चाहिए. देयर आर 4 पेजेस इन दिस शीट. यू कैन सी यहाँ पे 4 शीट है, 4 पेज है, सॉरी. तो आपको अगर सिर्फ एक पेज ही चाहिए, सिर्फ 1 पेज you want to print, just type here pages 1 to 1 only, 1 to 1 only. Or you want to page 1 to 2, just click on that 2 options, 2. Okay, page letter size A4, you have to select A4 size. Margin, you also select from the margins here. Okay, and this is the page setup. You just click that print button here, just आपका प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, और अगर आपको जानना है कि प्रिंट बिना एक्सेल में लाए कैसे करना है, तो उसके लिए फाइल फॉर्मेट होना चाहिए, गाइस. वहां से आप डायरेक्ट को राइट क्लिक करके वहां ऑप्शन आता है प्रिंट का. ठीक है, अगर एक्सेल में आपको नहीं लाना तो आपका डेटा तो कुछ भी होगा. वहां से आप ऑप्शन से प्रिंट का क्लिक करें. पीडीएफ फॉर्म में है तो क्लिक करें ऑप्शन से प्रिंट का. वहां पे एज इट इज ऑप्शंस, प्रिंट के सारे फंक्शन सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे ही होते हैं. जस्ट क्लिक ऑन दैट पेजेस एंड ओरिएंटेशंस ऑफ पेज, which is by default portrait mode, A4 size. Just click on that and click the paint button for that. Okay, hope you will understand. हाँ, पीडीएफ में मैंने अभी बताया ना.
It's up to you. You want to put any pictures or anything, just put on that and print it. Okay. Now I'm ending this session. So आप लोग फीडबैक फॉर्म भरें, कुछ देर में आपको ग्रुप में शायद मिल जाएगा, जरूर से फीडबैक फॉर्म भर दे गाइस. और एनी सजेशन just feel free to write. And our next workshop will be in PPT PowerPoint presentation, which is free, but if you want to pay anything you can pay, okay, but it is free. Now, so end of this session guys. Hope you all understand in this 2 days session I will, which is covering by Shad. So, and now I'm ending for this session. Hope you are all good. Take care. Bye bye. We will meet again in the next shop. Any questions? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you guys. Don't forget the fill the feedback form. Okay. Thank you. Take care. Have a good day. Bye. Bye bye.